Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockville BB College, Vapi, and I'm going to teach you advanced financial management subject, and we will continue our chapter that is valuation of security. So, example number 8: GUL Limited is getting the growth rate of 18% for the next 6 years. After that, the growth rate is expected to continue at 12% per annum. The company paid dividend of rupees to last year. Investors require rate of return is 16%. At what price would investors be ready to buy shares of company? Okay, so क्या information दिया पढ़ो. गुल लिमिटेड इज गेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ 18% फॉर द नेक्स्ट 6 years. यानी जी ग्रोथ रेट इज गिवन नेक्स्ट 6 years यानी 1 to 6 years तक कितना परसेंटेज 18%. After that, the growth rate is expected to continue at 12% per annum. Continue. So, G dash forever growth rate 12%. The company paid dividend rupees 2 last year, D0 2. Investors require rate of return 16, KE 16%. So, at what price would investors be ready to buy shares of the company? Now, based on the information, ये कौन सा formula use होगा? That is supernormal and the normal growth rate. Clear? तो फॉर्मूला P0 is what? Summation T equal to 1 to N. D0 1 plus G raised to T upon 1 plus K raised to T plus Dn 1 plus G dash upon K minus G dash into 1 upon 1 plus K raised to N. याद रखना ये फॉर्मूला. तो चलो A. सो ए के लिए कौन सा कितना कॉलम ईयर डिविडेंड इज व्हाट D0 1 plus G डिस्काउंट एट द रेट ऑफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के 16%. तो आपको क्या मिलेगा पीवी कितना ईयर 6 1 2 3 4 5 6 सेम ग्रोथ रेट है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ रेट फर्स्ट ईयर का. फर्स्ट ईयर के लिए दैट इज D0 1 plus G. सो D0 कितना है 2 1 प्लस ग्रोथ रेट 18% यानी 0.18. सो 2 1.18. सो 2 into 1.18 2 into 1.18 2.36. सो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कितना है 2.36. अभी वर्किंग नोट नहीं दिखाने डायरेक्टली 2.36 ग्रोथ रेट कितना है 18% इंटू 18% प्लस इक्वल टू 2.78 ओके इंटू 18% प्लस इक्वल टू 3.29 इंटू 18% प्लस इक्वल टू 3.88 into 18% plus equal to 4.58 into 18% plus equal to 5.40. ओके, अभी क्या करना है डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 16% यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में 16% टेबल वैल्यू देखना है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में 16% 0.862 0.753. okay, so 0.862 0.743 0.641 0.552 0.476 and 0.410 6 years तक मल्टीप्लाई करना है. सो 2.03 2.07 2.11 2.14 2.18 एंड 2.21. तो आपका आंसर आएगा 12.74 ए का. नाउ बी पार्ट DN 1 plus G dash upon K minus G dash into 1 upon 1 plus K raised to N. DN last year dividend that is 5.40. 1 plus G dash 12%, KE 16%, G dash 12% into 1 upon KE कितना है 16 सॉरी 1 plus 0.16 raised to 6 ना.
ना 5.40 1.12 होगा डिवाइडेड बाय 0.04 होगा इंटू 1/1 प्लस 0.16 मल्टीप्लाई करो तो 6.048 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1/1 प्लस 0.16 डिवीजन करो 151.2 इंटू अभी 16% फॉर 6 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो यही आएगा 0.410 ओके सो आपका आंसर आएगा 61.99 सो ये बी का आंसर है सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर ए प्लस बी सो ए कितना 12.74 ओके एंड बी 61.99 सो एडिशन करेंगे सो रुपीज 74.73 इज व्हाट प्राइस ऑफ द शेयर क्लियर चलो आंसर नंबर 9 rupees 100 par value bond bearing a coupon rate of 12% and the maturity after 6 years interest is paid semi-annually calculate value of the bond if required rate of return is 16% semi-annually okay तो आपको आगे वाला सम याद करना है so 100 rupees par value यानी face value is given face value 100 is given bearing a coupon rate of 12% so I 12% now I 12% it is always calculated on face value so interest क्या बन जाएगा 12 rupees maturity after 6 years and 6 interest is paid semi-annually calculate value of the bond if the required rate of return is 16% यानी K is what 16% तो semi-annually वाला so आपको फॉर्मूला याद होगा तो BO ना B0 value of the bond summation T equal to 1 to n I upon 2 upon 1 plus KD upon 2 raised to T into 2 plus face value 1 plus KD upon 2 n into 2 semi-annually वाले हाँ interest 12 divided by 2 divided by 1 plus KD 16 यानी 0.16 upon 2 time period 6 into 2 plus face value 100 1 plus 0.16 2 raised to 6 into 2 okay now 12 divided by 2 6 divided by 1 plus 0.16 divided by 2 that is 0.08 raised to 6 into 2 12 plus 100 का 100 1 plus 0.08 raised to 12 ओके अभी आपको यहाँ पे क्या दिखना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8% फॉर 12 ईयर्स हाँ पता है ना भूल मत जाना तो 6 को क्या करना है 6 को डिस्काउंट करना है 8% फॉर 12 ईयर्स सो आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल देखना है एन्युटी टेबल देखना है और 8% फॉर 12 ईयर 8% फॉर 12 ईयर्स तक देखना है दैट इज 7.536 क्लियर सो 6 को डिस्काउंट करना है 7.536 एंड 100 को क्या करना है 8% फॉर 12 बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल बिकॉज 100 रुपीज ओनली वन टाइम मिल रहा है ओके सो 8% फॉर 12 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% फॉर 12 ईयर 0.397 मल्टीप्लाई करो 45.216 प्लस मल्टीप्लाई करो 39.7 एडिशन ऑफ दिस रुपीज 84.92 रुपीज क्लियर नाउ नेक्स्ट आंसर नंबर 10 यह अलग सा सम है नाज लिमिटेड हैज बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ रुपीज 137.80 its return on equity is 15% and is following policy of retaining 60% of its earning if opportunity cost of capital is 18% what would be the price of the share today ये अलग सा सम है आगे एक भी सम्स नहीं आया now Nas Limited has a book value per share rupees 137.80 now book value दिया है ये कुछ अलग सा ही पूरा सम है एक बार एग्जाम में आया था 137.80
its return on equity is 15%, यानी R is given 15%. Is following policy of retaining 60%, retaining यानी retention ratio 60%. Its opportunity cost of capital is 18%. So KE 18%. So what would be the price of the share today? Now based on this information आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको पता होगा. तो मैंने आपको बोला था कि जब रिटेंशन रेशियो दिया होगा तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज EPS 1 माइनस बी अपॉन के माइनस आर इंटू बी वाला. ओके तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा P0 इज व्हाट EPS इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बी अपॉन KE माइनस R इंटू बी. ओके सो EPS नहीं है, रिटेंशन रेशियो है, KE है, R है, B है, सब है. नाउ EPS यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुक वैल्यू दिया है. नाउ नोट लिखना हो तो लिख लो कि व्हेन, कि यहाँ पे एक नोट लिख दो कि व्हेन बुक वैल्यू इज गिवन, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ share is given and return on equity is also given, return on equity also given, then EPS can be found with following formula. ओके तो यहाँ पे EPS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EPS इज इक्वल टू व्हाट, बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी. सो बुक वैल्यू पर शेयर कितना है 137.80 इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी 15%. सो 137.80 का 15% का लोगे ना तो EPS आएगा रुपीज 20.67. ओके बाकी तो सब फॉर्मूला में है. सो EPS कितना है 20.67, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो 60% डिवाइडेड बाई KE 18 माइनस R 0.15 into B 0.60. ओके now 20.67 वही रहेगा, 1 माइनस 0.60 यानी 0.40 डिवाइडेड बाई 0.18 माइनस 0.15 इंटू 0.60 दैट इज 0.09. ओके सो मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आएगा 8.268 डिवाइडेड बाई 0.09. ओके सो डिवीजन करेंगे सो रुपीज 91.87 is what price of the share. Clear? Okay now next sum in the next video. Bye, take care.